ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک شخص ان کے پاس آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں ایک ودیشی مہمان سمجھ کر ان کا استقبال کیا اور اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی۔ دراصل یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ خود ملاک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس ملاقات کے ذریعے حضرت ادریس علیہ السلام کا امتحان لینے اور ان کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنے آئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنا پسند کرتے تھے اور اکثر روزے سے رہتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے۔ پورا دن گزرنے کے بعد جب افطار کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے لیے اور مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کھانا شروع کیا، لیکن ان کا مہمان کھانے سے بالکل دور رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بار بار انہیں کھانے کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اصل میں یہ کوئی عام مہمان نہیں تھا، بلکہ اللہ کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے، اور فرشتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھانا نہیں کھاتے۔ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام انہیں پہچان نہیں پائے تھے، اس لیے وہ بار بار انہیں کھانا کھانے کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ رات کے سمے سونے سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر کہا، بھائی آپ کھانا کھا لیجئے، نہیں تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ لیکن وہ مہمان پھر بھی کچھ نہیں کھائے۔ انہوں نے پوری رات اللہ کی عبادت میں بتا دی۔ صبح ہونے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں پھر سے کھانے کے لیے کہا، لیکن مہمان نے اب بھی کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے مہمان سے کہا، بھائی آئیے ہم اللہ کی زمین میں تھوڑا سیر سپاٹا کریں اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کا شکر ادا کریں۔ پھر وہ دونوں ساتھ نکلے اور چلتے چلتے بہت دور چلے گئے۔ اچانک ان کے سامنے ایک باغ نظر آیا جو پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس مہمان نے کہا، اے اللہ کے نبی، آئیے ہم اس باغ میں چلتے ہیں اور وہاں سے کچھ پھل توڑ کر کھاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بنا لینا اللہ نے حرام کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مہمان بالکل خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اصل میں حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی آزمائش کر رہے تھے کہ کیا ان کے دل میں دنیا کے مال کا کوئی لالچ ہے یا نہیں۔ پھر وہ دونوں دوبارہ چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک میدان میں پہنچے جہاں ہزاروں بکریاں تھیں۔ انہیں دیکھ کر اس مہمان نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آئیے ہم ان میں سے کوئی ایک بکری پکڑ کر ذبح کریں اور اس کا گوشت مل کر کھائیں۔ اس بار بھی حضرت ادریس علیہ السلام غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، آپ کو حلال کھانا پسند نہیں آتا، لیکن دوسروں کا مال بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کسی کی اجازت کے بنا اس کا مال لینا اللہ نے حرام کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مہمان بالکل خاموش رہے۔ اس طرح وہ پورا دن اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے سفر کرتے رہے اور شام کے وقت واپس گھر لوٹ آئے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور وہ مہمان حضرت ادریس علیہ السلام کے گھر 3 دن تک رکے، لیکن ان 3 دنوں میں نہ انہوں نے کچھ کھایا اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے سوئے۔ آخر کار حضرت ادریس علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا، اے اجنبی، میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے اپنا پریچے دیجیے۔ کوئی انسان 3 دن تک بنا کھائے اور بنا سوئے نہیں رہ سکتا۔ آپ کون ہیں؟ اس پر وہ مہمان بولے، اے اللہ کے نبی، دراصل میں کوئی انسان نہیں بلکہ ملاک الموت حضرت عزرائیل ہوں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام ستبدھ رہ گئے۔ ان کا جسم کانپنے لگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سوچا، شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، نہیں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا، آپ مجھ سے بھائی چارہ قائم کیوں کرنا چاہتے ہیں ملاک الموت؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آسمان سے دیکھا کہ آپ کتنی توجہ اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کی یہ عبادت مجھے بہت پسند آئی، اس لیے میں نے اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کی کہ مجھے آپ کے پاس آنے اور آپ سے بھائی چارہ قائم کرنے کی اجازت ملے۔ میری لگاتار دعا کے بعد اللہ رب العالمین نے میری فریاد قبول کر لی اور مجھے آپ کے پاس آنے کی اجازت دے دی۔
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलाकुल मौत अज़राइल, आप मुझसे भाईचारे का रिश्ता कायम करना चाहते हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप मेरी शर्तें पूरी करेंगे तो ही मैं आपको अपना भाई मान लूंगा। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी शर्तें क्या हैं? आप बेझिझक मुझे बताइए, मैं आपकी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आप मेरी रूह कब्ज करें। जब मेरी रूह कब्ज होगी तभी मैं महसूस कर पाऊंगा कि मौत का दर्द कितना तकलीफ देह होता है, और इसे याद करके मैं और ज्यादा इबादत कर पाऊंगा। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी भले ही मेरी है, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म के बिना किसी की रूह नहीं कब्ज कर सकता, और अभी आपका मौत का वक्त नहीं आया। इस पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर आप अल्लाह से दुआ करें कि वह आपको इस काम की इजाजत दे। मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज की, ए अल्लाह, आपका नबी मौत के दर्द को महसूस करना चाहता है, आप उसे यह एहसास होने दें। अज़राइल अलैहिस्सलाम की यह दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली और उन्हें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने की इजाजत मिल गई। फिर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी है। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बेहद खुश हो गए और कहने लगे, भाई अब आप अपना काम शुरू करें। इसके बाद हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने की तैयारी कर ली। उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटा दिया और बहुत नरमी से उनकी रूह कब्ज कर ली ताकि उन्हें तकलीफ न हो। जब रूह पूरी तरह से कब्ज कर ली गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह उनके जिस्म में वापस कर दी। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा हो गए। जैसे ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम होश में आए, हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, भाई इदरीस, आपको मौत का दर्द कैसा महसूस हुआ? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मलाकुल मौत, अगर किसी जिंदा बकरी की खाल उसके जिस्म से उतार दी जाए तो उसे जितना दर्द होगा, मुझे उससे हजारों गुना ज्यादा तकलीफ महसूस हुई। यह सुनकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, जब से मैंने इंसानों की रूह कब्ज करनी शुरू की है, तब से लेकर आज तक मैंने किसी की रूह इतनी नरमी से कब्ज नहीं की जितनी आपकी की। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कोई तकलीफ न हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा तकलीफ हुई तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलाकुल मौत अज़राइल, आपने जानबूझकर मुझे तकलीफ नहीं दी, इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह वापस आ गई तो उन्होंने मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, भाई अज़राइल, मेरा मकसद यह था कि मैं मौत की तकलीफ को महसूस करूं ताकि इससे इबरत हासिल करके अल्लाह की इबादत में और मगन हो सकूं। अब मैंने मौत का एहसास कर लिया है, लेकिन मेरी आपसे एक और गुजारिश है। मैं चाहता हूं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरे लिए यह दुआ करें कि वह मुझे जहन्नम देखने की इजाजत दे दें, ताकि मैं अपनी आंखों से उसका खौफनाक मंजर देखूं और फिर अल्लाह की इबादत में और ज्यादा मशगूल हो जाऊं। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें इजाजत दे दी कि वे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जहन्नम दिखा सकते हैं। इसके बाद हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आइए, अल्लाह ने आपको जहन्नम दिखाने की इजाजत दे दी है। फिर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर जहन्नम की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, जहन्नम का खौफनाक मंजर सामने आता गया। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहन्नम की भयानक सजाएं और आग का तूफान देखा तो उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गए। जब उन्होंने जहन्नम को पूरी तरह देख लिया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे रोने लगे। उसके बाद उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, भाई अज़राइल, आपने मुझे मौत की तकलीफ महसूस करवाई, आपने मुझे जहन्नम दिखाई। अब मेरे दिल में अल्लाह की इबादत का और ज्यादा जज्बा पैदा हो गया है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं पूरी तरह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहूंगा। मैं अपनी उम्मत को भी यह समझाऊंगा कि मैंने अपनी आंखों से जहन्नम देखा है और मैंने मौत का दर्द महसूस किया है। मौत की तकलीफ बहुत सख्त है और जहन्नम इतनी खौफनाक जगह है
कि वहाँ की सजा कोई भी सहन नहीं कर सकता। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल आई, लेकिन उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को इसका एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर कहा, मेरे दिल में एक और गुजारिश है। आपने मेरे साथ दोस्ती का रिश्ता कायम किया है, तो उम्मीद है कि मेरी यह बात आप नहीं टालेंगे। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, आपकी क्या ख्वाहिश है, बताइए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेहरबानी करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरे लिए यह दुआ करें कि वह मुझे जन्नत देखने की इजाजत दे दें, ताकि मैं अपनी आंखों से जन्नत के नेमतों को देख सकूं। बार बार जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह अनुरोध किया, तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आपके नबी जन्नत को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत देखने की इजाजत दे दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जन्नत देखने की इजाजत मिली, तो उन्होंने शुक्र अदा किया और सिजदा किया। फिर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर जन्नत की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वे जन्नत के करीब पहुंचते गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल आया, लेकिन उन्होंने इसका एहसास हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को नहीं होने दिया। वो सोच रहे थे कि अगर किसी भी तरह वह जन्नत में दाखिल हो जाएं, तो वहीं रुक जाएं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो एक बार जन्नत में दाखिल हो जाएगा, उसे फिर कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सोचा, अब जब मैंने मौत का एहसास कर लिया है, तो अगर किसी तरह जन्नत में दाखिल हो जाऊं, तो हमेशा के लिए वहीं रहूंगा और कभी बाहर नहीं आऊंगा। यह सब सोचते हुए भी उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को इसका एहसास नहीं होने दिया। लेकिन अल्लाह ताला उनके दिल की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी तकदीर पहले ही इसी तरह लिखी जा चुकी थी। अल्लाह ने पहले से ही तय कर रखा था कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत से पहले जन्नत दिखाएंगे और फिर उन्हें जन्नत में हमेशा के लिए रहने की इजाजत दे देंगे। जब हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा, भाई इदरीस, यह है जन्नत, इसमें दाखिल हो जाइए, लेकिन एक शर्त है, अपने पैरों की जूतियां बाहर छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने कहा, आप जन्नत की तमाम नेमतों और रहमतों का लुत्फ उठाइए, लेकिन याद रहे, जब मैं आपको आवाज दूं तो तुरंत वापस आ जाइए, क्योंकि फिर हमें दुनिया में लौटना होगा। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में क्या योजना चल रही है। उन्होंने सोचा कि इदरीस अलैहिस्सलाम थोड़ी देर जन्नत का दीदार करके वापस आ जाएंगे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के इरादे कुछ और थे। उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम की बात मानकर अपनी जूतियां बाहर उतार दी और जन्नत में दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने जन्नत की नेमतों को देखा, उनकी आंखें ठंडी हो गईं। जन्नत का हुस्न, वहाँ की आरामदायक फिजा, नहरें, खूबसूरत बागात, बेहतरीन खजूरें, लजीज खाने, ये सब देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। जन्नत की हर एक नेमत को देखकर उनका दिल बस यही कह रहा था, मैं अब यहाँ से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब जन्नत की नेमतों को देख रहे थे, तो उनका दिल अल्लाह की कुदरत पर झुकता चला गया। वे बार बार सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। जन्नत की खूबसूरती उन्हें इतनी भा गई कि वे पूरी तरह इसके मोह में पड़ गए। इधर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को एक लंबा वक्त इंतजार करना पड़ा। जब बहुत देर हो गई, तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ऐ अल्लाह के नबी, अब हमें लौटना होगा, हमारा वक्त पूरा हो चुका है और मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अल्लाह ने मुझे एक बड़ा जिम्मा सौंपा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी, तो वे धीरे धीरे जन्नत के बाहर निकलने लगे। उन्होंने अपनी जूतियां पहनी और फिर अचानक वापस दौड़ते हुए जन्नत में दाखिल हो गए। ये देखकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और बोले, भाई इदरीस, आप वापस जन्नत के अंदर क्यों चले गए? हमें तो अब दुनिया की तरफ लौटना था। इस पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, भाई अज़राइल, मैंने तो अपने वादे को पूरा कर दिया। आपने मुझसे कहा था कि मैं जन्नत में जाऊं, वहाँ की नेमतों को देखूं और फिर बाहर आ जाऊं। मैंने वैसा ही किया। मैं बाहर निकला और अपनी जूतियां भी पहन ली। लेकिन अब मैं जन्नत से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि जो शख्स मौत के बाद जन्नत में दाखिल होगा, वह वहाँ से कभी नहीं निकलेगा। आपने मेरी रूह कब्ज की थी, यानी मेरी मौत हो चुकी है। मैंने जहन्नम भी देख ली। अब जब मैं जन्नत में दाखिल हो गया हूँ, तो अल्लाह के वादे के मुताबिक मैं हमेशा यहीं रहूंगा। ये सुनकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल चुप रह गए। दरअसल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की यह योजना
पहले से ही अल्लाह की तदबीर में लिखी हुई थी। अल्लाह ने पहले ही तय कर दिया था कि वे जिंदा रहते हुए जन्नत में दाखिल होंगे और हमेशा वहीं रहेंगे। इसके बाद जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत की नेमतों को देखा और उसका लुत्फ उठाया तो उन्होंने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने जन्नत देख ली और वादा पूरा कर लिया, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्होंने बार बार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा, हमें अब लौटना होगा, यह अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी बात पर अड़ गए और साफ इनकार कर दिया। अब हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, आपने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपके नबी इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत दिखाऊं। मैंने हुक्म की तामील की, लेकिन अब वह यहाँ से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। ऐ अल्लाह, अब आप ही कोई फैसला फरमाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब आया, ऐ मलाकुल मौत, तुम अपनी काम पर वापस चले जाओ। मैंने पहले ही तय कर रखा था कि मेरे नबी इदरीस इसी तरह जन्नत में दाखिल होंगे और हमेशा यहीं रहेंगे। अब उन्हें जन्नत की नेमतें लुत्फ उठाने दो। ये सुनकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे। उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम किया और वापस लौट। अल्लाह के वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें।